اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ غمگین نہ کرے جو کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔ وہ جو یہود ہوئے وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ جاسوس ہیں ایک دوسرے جماعت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئے، کلام کو پھیر دیتے، بدل ڈالتے ہیں اس کے ٹھکانے کے بعد ٹھکانہ چھوڑ کر کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو اور اگر تمہیں نہ دیا جائے تو اس سے بچو، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تو اللہ کے ہاں کچھ نہ کر سکے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دل پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے، حرام کھانے والے، پس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دے یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیتے تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصف بنانے ہے۔ جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں اور وہ ماننے والے نہیں۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے ذریعے ہمارے نبی جو فرماندار تھے حکم دیتے تھے یہود کو اور درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر نگربان تھے۔ پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور نہ حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے سو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کو قصاص بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفار ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو ان کے نشانے قدم پر بھیجا، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات سے تھی، اور ہم نے اسے انجیل دی، اس میں سے ہدایت اور نور ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلی تورات سے تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، اور انجیل والے اس کے ساتھ فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے سو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور اس پر نگہبان وہ محافظ سو ان کے درمیان فیصلہ کرے اس سے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ اس کے بعد جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا، ہم نے مقرر کیا ہے تم سے پہلے ہر ایک کے لیے الگ دستور اور جدا راستے پر۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ ایک امت کر دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں اس سے آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس نیکیوں میں سبق کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے، اور ان کے درمیان فیصلہ کرے اس سے جو نازل کیا اللہ نے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ تمہیں بہکا نہ دے کسی ایسے حکم سے جو نازل کیا ہے اللہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
फिर अगर वह मुंह फेर ले तो जान लो कि अल्लाह सिर्फ यही चाहता है कि उन्हें सजा पहुंचाए, उनको बाज गुनाहों के सबब, और उनमें से अक्सर लोग नाफरमान हैं। क्या वह दौरे जाहिलियत का हुक्म रस्म और रिवाज चाहते हैं, और अल्लाह से बेहतर हुक्म किसका है उन लोगों के लिए यकीनन रखते हैं। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारान को दोस्त न बनाओ, उनमें से बाज दोस्त है, बाज को एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में से कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो बेशक वह उनमें से होगा। बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिमों लोगों को। बस तू देखेगा जिन लोगों के दिलों में रोग है वह उन यहूद नासारान की तरफ दौड़ते हैं। वह कहते हैं हमें डर है कि हम पर गर्दिशे जमा न आ जाए, सो करीब है कि अल्लाह फतह लाए या अपने पास से कोई हुक्म लाए तो वह अपने दिलों में जो छुपाते थे उस पर पछताते रह जाएंगे। और मोमिन कहेंगे क्या यह वही लोग हैं जो अल्लाह की पक्की कसमें खाते थे कि वह तुम्हारे साथ है, उनके अमल आखिरत गए, बस वह नुकसान उठाने वाले। ईमान वालों, तुम में से जो कोई अपने दिल से फिरेगा तो अनकरीब अल्लाह इसी कौम लाएगा जिनमें वह महबूब रखता है और वह उसे महबूब रखते हैं। वह मोमिनों पर नरम दिल है, काफिरों पर जबरदस्त है। अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। यह अल्लाह का फजल है, वह जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। तुम्हारे रफीक तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं, और वह जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हैं। जो दोस्त रखे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को, तो बेशक अल्लाह की जमात ही सब पर गालिब होगी। ऐ ईमान वालों, उन लोगों को जो तुम्हारे दिन को एक मजाक और खेल ठहराते हैं, यानी वह जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और काफिरों को दोस्त न बनाओ और अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो, अजान देते हो, तो वह उसके एक मजाक और खेल ठहराते हैं। यह इसलिए है कि वह लोग अकल नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, ऐ अहले किताब, क्या तुम हम से यही जिद रखते हो, इंतकाम लेते हो कि हम ईमान लाएं अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो उससे कब्ल नाजिल किया गया, और यह कि तुममें से अक्सर नाफरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, क्या मैं तुम्हें बतलाऊं उससे बदतर जजा किसकी है? अल्लाह के हाँ, वही जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गजब किया, और उनमें से बना दिए बंदर और खिंजीर, और उन्होंने तागूत सर्कस शैतान की गुलामी की। वही लोग बदरीन दर्जे में हैं और सीधे रास्ते से सबसे ज्यादा बहके हुए हैं। और जब तुम्हारे पास आए तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि आए थे कुफ्र की हालत में और निकले तो कुफ्र के साथ, और अल्लाह खूब जानता है जो वह छुपाते हैं। और तू देखेगा उनमें से बहुत से भाग दौड़ करते हैं गुनाह और जाति में से, और हराम खाने में बुरा है जो वह कर रहे हैं। उन्हें क्यों मना नहीं करते दरवेश और उलमा गुनाह की बात कहने से, और उनके हराम खाने से बुरा है जो वह कर रहे हैं। और यहूद कहते हैं अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अल्लाह बखील है, बांध दिए जाए उनके हाथ, और जो उन्होंने कहा उससे उन पर लानत की गई। बल्कि अल्लाह के हाथ कुशादा है, वह खर्च करता है जैसे वह चाहता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से नाजिल किया गया, उससे उनमें से बहुतों की सरकीस जरूर बढ़ेगी और कुफ्र, और हमने उनके
अंदर क़यामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बैर डाल दिया है। वह जब कभी लड़ाई की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है और वह मुल्क में फसाद करते हुए दौड़ते हैं, फसाद बर्पा करते हैं और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और अगर अहले किताब ईमान लाते हैं, परहेजगारी करते, तो हम अलबत्ता उनसे उनकी बुराइयां दूर कर देते और नेमत के बागात में जरूर दाखिल करते। और अगर वह तौरेत और इंजील कायम रखते और जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, तो वह खाते अपने ऊपर से और अपने पाँव के नीचे से। उनमें से एक जमात मियान रो है और उनमें से अक्सर बुरे काम करते हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुंचा दो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, और अगर यह न किया तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह कौमें कुफ्फार को हिदायत नहीं दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ए अहले किताब, तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम न कायम करो तौरात और इंजील और जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है, और जरूर बढ़ जाएगी उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र उसकी वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस न करें, गम न खाएं कौमे कुफ्फार पर। बेशक जो लोग ईमान लाएं और जो यहूद हुए और साबी सितारा परस्त और नसारा जो भी ईमान लाएं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अच्छे अमल करे, तो कोई खौफ नहीं उन पर और न वह गमगीन होंगे। बेशक हमने बनी इजराइल से पुख्ता अहद लिया और हमने उनकी तरफ रसूले भेजे, जबकि उनके पास कोई रसूल आया उस हुक्म के साथ जो उनके दिल न चाहते थे, तो एक फरीक को झुठलाया और फरीक को कत्ल कर डाला और उन्होंने गुमान किया कि कोई खराबी न होगी, सो वह अंधे हो गए और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया, फिर उनमें से अक्सर अंधे और बहरे हो गए। सो अल्लाह देख रहा है जो वह करते हैं। बेशक वह काफिर हुए जिन्होंने कहा, तहकीक अल्लाह वही है। मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम और मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इजराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो तहकीक अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। अलबत्ता वह लोग काफिर हुए जिन्होंने कहा, बेशक अल्लाह तीन में का एक है और माबूद वाहिद के सिवा कोई माबूद नहीं, और अगर वह उससे बाज न आए जो वह कहते हैं, तो उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें जरूर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। और वह तौबा क्यों नहीं करते अल्लाह के आगे और उससे गुनाहों की बख्शिश क्यों नहीं मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मसीह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नहीं मगर रसूल, वह सिर्फ एक रसूल है। उससे पहले रसूल गुजर चुके हैं और उसकी माँ सिद्दीक़ा सच्ची वाली है। वह दोनों खाना खाते थे। देखो हम उनके लिए कैसे दलाइल बयान करते हैं, फिर देखो ये कैसे औधे जा रहे हैं। कह दे, क्या तुम अल्लाह के सिवा उसे पूजते हो जो तुम्हारे लिए मालिक नहीं किसी नुकसान का और न नाफा का, और अल्लाह ही सुनने वाला जानने वाला है। कह दे, ए अहले किताब, अपने दिन में नाहक मुबालिगा न करो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो जो उससे कब्ल गुमराह हो चुके हैं, और उन्होंने बहुत सो को गुमराह किया और खुद भी बहक गए सीधे रास्ते से। बनी इजराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया वह मौलून हुए,
दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बानी यह इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वह हद से बढ़ते थे। वह एक दूसरे को बुरे काम से जो वह करते रहे न रोकते थे, अलबत्ता बुरा है जो वह करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे उनमें से अक्सर काफिरों से दोस्ती करते हैं, अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा खुद उन्होंने अपने लिए कि उन पर अल्लाह गजबनाक हुआ और वह हमेशा अजाब में रहने वाले हैं।